Yes, now it is started, guys. Yes, guys. So we are at this point. Yes. So our ellipse equation that we know, which is nothing but ellipse equation is that is x square ry square plus y square rx square minus rx square ry square. So that is our ellipse equation. Okay. Now what we'll do, instead of x we will use xk plus 1, instead of y we will use yk minus half. So we'll put in this equation, and this is nothing but our decision parameter for the first. Why it is first? Because we are solving this whole thing with for reason 1 only, so that's why it is p1k. Okay, for reason 2 we will use p2k. Okay, so once put it, guys, instead of x put xk plus 1, so your equation becomes xk plus 1 whole square, it is nothing but ry square plus y is nothing but yk minus half. Okay, so it becomes yk minus half whole square rx square minus rx square, sorry, it becomes ry square. Okay, so this is your p1k. Now guys, what will be the next point? That is nothing but, let's assume, which is nothing but pk plus 1. Okay, so in this equation what we'll do, simply we'll simply replace k with k plus 1. So this equation becomes k plus 1. Okay, and it is nothing but your ry square plus yk becomes yk plus 1. Everywhere we have to replace k with k plus 1. So it is square rx square minus rx square ry square. Now guys, please remember, this is your current point. Okay, this is your current point. So this is nothing but p1k plus 1. Now what we'll do, we'll take the difference of these two. Yes or no? We'll take the difference of these two. So before difference, we know, guys, this xk plus 1 is nothing but your x is always increased by 1, so it becomes xk ऊपर में प्लस 1, नया पॉइंट आ जाएगा बेसिकली. ओके, तो ये अपने को थोड़ा यहाँ पे अपन इसको रीफ्रेम करके लिख सकते हैं. सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस, सो दिस p1k plus 1 becomes, see that xk plus 1 can be rewrite as xk plus 1. yes or no? और फिर आपका प्लस 1 है होल स्क्वायर. डोंट बी कंफ्यूज इन इट, प्लीज सी द बैक स्लाइड. हेयर इट इज एक्स के प्लस 1 का पूरा होल स्क्वायर था. मैंने इस एक्स के प्लस 1 को क्या लिख दिया, एक्स के ऊपर में प्लस 1. ठीक है, बिकॉज वी नो इन रीजन 1 एक्स वैल्यू इज ऑलवेज increased by 1. Okay, so that's why I rewrite this equation as this one, and it becomes ry square. Remaining all the things will remain same, because we know y will increase by 1, I mean decrease by 1, or it will remain same. That we will see later. So half whole square rx square minus rx square and ry square. So that is the equation. Now we have current point as well as next point. We will take difference of these two, which is nothing but p1k plus 1 minus pk. So what is p1k plus 1? This whole equation. So we have to just rewrite it as देखिए गाइज, मैंने इसको सोल्व कर लिया है, तो एक बार मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ वो इक्वेशन कैसे आई है. ठीक है, मैंने हैंड रिटन इसको सोल्व करके देख लिया है. So with this is the first term, then 1 dot ry square. Actually it is a plus b whole square, और पैरेलली अपन ry square को मल्टीप्लाई करें. So a plus b whole square becomes a square plus b square plus 2ab. तो वही यहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. 2 of xk plus 1 ry square, not this one. Let me erase it. ठीक है, तो देखो ये पूरा फॉर्मूला बन गया है आपका. दिस टर्म इज ए स्क्वायर, दिस टर्म इज बी स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज
2ab, तो ये पैरेलली मैंने आर वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज व्हाट द जस्ट एक्सपेंड फॉर्मूला ऑफ दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस open that formula also, this is a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab, okay, this time. So this formula becomes yk plus 1 whole square rx square plus 1 by 4 rx square minus 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो it becomes only yk plus 1 rx square. This is what the expand of a minus b whole square, ठीक है. Now the last term will remain same, which is rx square and ry square, okay. Now guys, this is what your pk, p1k plus 1. Now what is pk? That is minus term. pk is nothing but your this term. p1k is nothing but this term, okay. So it is p1k. Yes guys, so minus, अब जब आप इसको पुट करोगे तो it becomes xk plus 1 whole square ry square minus yk whole square rx square minus 1 by 4 rx square plus yk rx square plus rx square ry square. तो गाइस एक बार उस इक्वेशन को देखते हैं अपन. देखो मैंने इस फॉर्मूले को बेसिकली एक्सपेंड कर दिया है, इसको मैंने ओपन कर दिया है, बस इसीलिए वो इक्वेशन चेंज हुई है. ये वाली टर्म्स तो सेम है, फर्स्ट टर्म सेम है आपकी और सारी टर्म्स माइनस हो जाएगी, ठीक है. सो ये जब आप करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, so it becomes this in this form, okay. Now guys, the reason to do this, we can cancel out some terms, some common terms, okay. Like you can see this term is cancelled with this term, yes or no. Same as 1 by 4th cancelled with this one. Same as any other term that we can cancel out, yes, that is this term, because one is positive, one is negative. So guys, the reason is to do this, we just cancelled out some terms, some common terms. Now this pk 1k plus 1 becomes p1k plus 1k को मैं इधर लेके आ गया. बाकी क्या क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 2 of xk plus 1 ry square this term, upper one this term, प्लस एक रह गया टर्म दैट इज ry square. ये वाली टर्म ये रह गई थी, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने ry square, ओके. प्लस और कौन सी टर्म बची? एक अपने पास गाइस देखो ये वाली टर्म बची rx स्क्वायर, और rx स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है. तो ये दोनों कॉमन लेके मैं लिख देता हूँ. तो ये बचा rx स्क्वायर, जब कॉमन लोगे आप तो इट विल बिकम्स yk प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस yk प्लस 1. ये rx स्क्वायर वाली टर्म बची माइनस, देखो अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया. नीचे क्या क्या बच गया? ये कैंसिल हो गया. देखो यहाँ पे भी rx स्क्वायर कॉमन है, सो जस्ट टेक इट एज कॉमन, सो इट बिकम्स rx स्क्वायर. क्या बचा अपने पास? बचा गाइस एक बार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. दिस टर्म इज ओके. सो इट बिकम्स k+1 तो सबस्क्रिप्ट में है. ये k+1 है क्या सबस्क्रिप्ट में? मेरे को ये लग रहा है यहाँ पे. सर जो pk+1 वाला है वो सबस्क्रिप्ट में है k+1, तो उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. कौन सा वाला? तो pk+1 में जो लिया है वो xk+1 सबस्क्रिप्ट में है ना सर. कहाँ पे बताओ मुझे, कहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सर टॉप में जो है ये p1k+1 हाँ इज इक्वल टू ब्रैकेट में xk+1, ये एक सबस्क्रिप्ट में है. ये वाली टर्म. हाँ ये सर. नहीं तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगी ना, बिकॉज xk+1 तो हमेशा x इंक्रीज हो ही रहा है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ तो सर फिर ये कैंसिल आउट नहीं होगा ना, ये जो आपने xk+1 ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए. ये और ये वाली टर्म. हाँ क्योंकि सर वो सबस्क्रिप्ट में है ना वो k+1 उसका.
अरे आप समझो, ये जो सबस्क्रिप्ट में है ना, दीज टू टर्म्स आर सेम, ये दोनों बराबर है, बिकॉज इन रीजन वन ये जो टर्म है ये हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, अपने को पता है। ये तो मैंने इसको ऑलरेडी, इसीलिए तो इसको यहाँ पे ऊपर लेके आया हूँ ताकि अपन इन दोनों को कैंसिल आउट करें, ये टर्म्स तो कैंसिल होगी। नहीं, मुझे कंफ्यूज यहाँ हो रहा है कि आपकी ये जो आर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये टर्म सर वाई वहाँ के, पे सर वहाँ पे ब्रैकेट में वाई के स्क्वायर माइनस वाई के आएगा कहाँ आगे। पे आप जो लिख रहे थे ना आर एक्स स्क्वायर का, वाई के वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस माइनस वाई के, ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा। यस सर। श्योर? यस सर। मतलब मैं वही देख रहा हूँ, एक बार ये चीज़ सही है ना, मैं एक बार मेरे हैंड रिटन नोट से मैच कर लेता हूँ जस्ट वेट, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। गाइस इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिखते हैं। देखो एक बार मैं वापस से इसको इरेज करता हूँ। अपन ने, हालांकि अपन कर सही रहे हैं, लेकिन अपन क्या है, मैंने जो हैंड रिटन नोट से सोल्व किया है ना, उसकी तरह चलेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। इस टर्म्स को वापस से रिप्लेस कर रहा हूँ। यस, अब देखो गाइस, ये टर्म्स तो हो गई आपकी, ये वाली टर्म्स। अब देखो यहाँ पे अपने पास चार टर्म्स बची है। एक तो अपने पास बची है ये वाली टर्म, लेट मी टेक डिफरेंट कलर सो यू विल नॉट बी एनी, देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। यस, एक तो मेरे पास बची है गाइस ये वाली टर्म, एक मेरे पास बची है ये वाली टर्म, एक मेरे पास बची है ये वाली टर्म, और एक मेरे पास बची है ये वाली टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, सबसे पहले मैं आर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ वाई के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर। इट मीन्स मैंने क्या करा, ये वाली टर्म, सॉरी मैंने क्या करा, ये वाली टर्म, और ये तो ये रहेगा ना, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये केवल वाई की रहेगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म, मतलब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म में से आर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला ताकि स्क्वायर टर्म एक जगह हो जाए, ये बस इसलिए किया है मैंने, ठीक है। फिर साथ में माइनस आर एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास कौन कौन सी टर्म बची, अब मेरे पास बची टर्म्स, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसमें क्या होगा, स्क्वायर नहीं आ रहा, देखो वाई के प्लस वन वाई के है, ठीक है। इसलिए बस मैं दोनों को एक जगह करने के लिए मैंने ये किया, ठीक है। सो इट बिकम्स वाई के प्लस वन माइनस वाई के। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है और स्क्वायर वाली टर्म्स में से अलग कॉमन लिया है, बस मैंने ये किया है, ये इन दोनों में से लिया है कॉमन। So don't be confused in it. It is just handwritten practice, okay? तो guys this is what basically my 1 pk का फॉर्मूला आ कर चुका है, मतलब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और रीराइट अगर अपन करें, स्मॉल फॉर्म में बनाएं, सो इट बिकम्स p 1k प्लस आर वाई स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से। सो जैसे ही मैंने कॉमन लिया, इट बिकम्स 2 ऑफ एक्स के प्लस वन एंड प्लस वन। इन दोनों टर्म में से जब आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये वाली टर्म बची मेरे पास, प्लस इन दोनों टर्म में से जब मैंने आर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास बचा ये टर्म, ये टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ये मेरे पास गाइस फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ लाइन जा रही है? यस, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई गाइस आपको, ये चीज समझ में आई। दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन योर करंट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट। तो जब आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ओके। इज इट क्लियर?
Is it clear, guys? Is it clear? Say yes or no. Yes, If you have sir. any doubt, you can ask me. Yes. So Yes, guys, sir. yes. So if this term is clear, now we have again two choice, whether our point is greater than 0 or less than equals to 0. Okay. So according to this, we have to set our y coordinates basically in this equation, जो कि अपन ब्रेसनम सर्किल और मिड पॉइंट सर्किल में करते हुए आ रहे हैं. वहां भी अपन ने ये किया था, यहाँ भी अपन यही कर रहे हैं. ठीक है. ओनली द ellipse equation is changed. Okay. So if your p1k value is less than 0, if it is less than 0, then you will treat your yk plus 1 as yk, means your point will remain same. You have to remember this condition. So once you put yk plus 1 equals to yk in this upper equation, then you will get your p1k plus 1 equals to, ध्यान से देखना. ठीक है. दिस इज p1k. ये पूरी टर्म्स एज इट इज रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. So it is nothing but your ry square. It is 2 of xk plus 1 plus 1. अब देखिए गाइस, इस टर्म में जैसे आप इस yk plus 1 को yk करोगे, मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लस rx square, yk plus 1 becomes yk, so it yk whole square minus yk whole square. Again this yk plus 1 becomes yk, so it is this one. So if you see, this is cancelled out with each other, this is cancelled out, so this whole terms becomes 0. So we conclude, if your p1k is less than 0, your next point would be p1k plus ry square of 2 xk plus 1 plus 1. This is the formula for the first case where your p1k is less than 0. Now if it is greater than equals to 0, you have to simply replace yk plus 1 equals to yk minus 1. That we will see in the next slide. Okay. So our core equation is what? This one. इसके अंदर सारा इक्वेशन चेंज हो रही है. दिस इज इक्वेशन 1 वी कैन से. ओके. नाउ गाइस, सेकंड केस इज if your p1k is greater than equals to 0. In that case, what we will do? We will simply replace this term with yk minus 1, because we have two choice in y. Either we have to keep it same or we have to reduce it by 1. Okay. Is it clear? Is it clear? So in that case, your pk plus 1 equation becomes p1k plus 2 of xk plus 1 ry square plus ry square. ये मैंने कुछ नहीं करा गाइस, ये सिंपली इसको ry को स्क्वायर को अंदर असाइन कर दिया है. मतलब ry स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और प्लस इससे किया है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी. शिट पेज हो गया पूरा, पता नहीं सेव भी था नहीं था. जस्ट वेट. अरे यार, चलो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी. पूरा का पूरा कैसे रिकवर कर सकते हैं कि इसको नहीं आया. इस फाइल को रिकवर कैसे करें यार? दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस पावर पॉइंट. चलो गाइस, कोई ना, मैं आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ शेयर कर दूंगा. वो तो इरेज हो चुका है क्योंकि सेव नहीं किया था अपन ने, और आई डोंट नो हाउ टू रिकवर इट. और सो गाइज, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपने पास जो इक्वेशन आई थी वो मैं आपको भी हैंड रिटन नोट्स करूंगा ना, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो अपने पास इक्वेशन आई थी उसमें अगर अपने पास p1 के लेस देन 0 है तो अपन yk प्लस 1 को yk से रिप्लेस करेंगे, और इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन विल रिप्लेस yk प्लस 1 विद yk माइनस 1. तो उस केस में भी अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी. इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? मुझे बताओ, इतनी बात Yes. समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? Yes, sir. हो गया यार. Yes, sir.
ओके क्या करेंगे इसको सेव करके। चलिए गाइस, तो अब आज तो क्लास का टाइम हो चुका है। अभी सीएन की क्लास कितने बजे से आपकी? अब देखो अपना क्या बचा गाइस, जो अपना कंसर्न बचा है वो क्या बचा है, रीजन 1 के अपन ने दोनों केस निकाल लिए हैं। द ओनली थिंग इज, एक तो रीजन 1 का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर बचा है जिसमें अपन ओरिजिनल इलिप्स इक्वेशन में 0,ry रखेंगे। उसके बेसिस पे एक अपने पास इक्वेशन आएगी, दैट इज इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। जैसे था ना अभी, जैसे अपन ने ब्रेसनम में किया था अभी जस्ट, कि पहले अपने पास डिसीजन पैरामीटर है p इक्वल्स टू p प्लस 2 इंटू dy, फिर उसके बाद इफ p इज लेस देन 0 वी हैव सम कैलकुलेशन, इफ p ग्रेटर देन 0 वी हैव सम कैलकुलेशन। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है मिड पॉइंट में भी, कि अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने दो इक्वेशन निकाल ली कि इफ इट इज लेस देन 0 दिस इज द इक्वेशन, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज द इक्वेशन। अब अपना क्या बच गया, केवल डिसीजन पैरामीटर बच गया फर्स्ट रीजन के लिए, और रीजन 2 की पूरी कैलकुलेशन मतलब पूरा डेरिवेशन बच गया। सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, एंड अलोंग विद दिस वी विल आल्सो सी न्यूमेरिकल ऑफ इट। तो वो हैंड्स ऑन कर लिए मैंने गलती से, मैं एक काम करूंगा पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको सारा रिकॉल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वहां से मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? और फिर इसी के रेस्पेक्टिव अपन नेक्स्ट क्लास में भी न्यूमेरिकल करेंगे। सो मंडे क्लास गाइज आपका इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे को 22 है और 24 को आपकी फर्स्ट क्विज है। तो अगर आपको क्विज में आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपका सिलेबस आ रहा है टिल इलिप्स। तो देखो इलिप्स का डेरिवेशन आना थोड़ा टफ है एग्जाम में, बट डेरिवेशन आ सकता है आपका सर्किल का मिड पॉइंट और ब्रेसनम एल्गोरिथम, या फिर लाइन का ब्रेसनम एल्गोरिथम, उसका डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। बिकॉज इलिप्स का लोग इसलिए नहीं पूछते हैं बिकॉज एक तो अभी ऑनलाइन पीरियड में आपका 2 और मैक्सिमम 2 आवर्स का पेपर होगा, उस 2 आवर्स में कम से कम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स अगर इलिप्स का डेरिवेशन पूछा जाता है तो उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, बट प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि उसमें आपको दोनों रीजंस निकालने होते हैं, दैट इज ओनली द रीजन। ओके, बाकी प्रोसीजर सेम ही है गाइस, वही अपन करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले अपन ने इलिप्स की इक्वेशन ली, अपन ने मिड पॉइंट्स निकाले, अपन ने इलिप्स की इक्वेशन में पुट किए, फिर दो केस देखे, इफ इट इज लेस देन 0 इफ इट इज ग्रेटर देन 0, फिर इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकाला। यही काम अपन ने सर्किल में किया था, यही काम अपन ने ब्रेसनम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में किया था। सो द अप्रोच इज सेम, ओनली एवरी टाइम द पॉइंट्स आर चेंज, दैट्स ऑल, और द equations are changed. Sometime we have circle equation, sometime we have ellipse equation, and so on. Okay, so I hope guys you whatever we have covered in this class you understand it, yes or no? Yes sir. Okay guys, so this is all from my side. If you have any doubt you can ask me, otherwise एक क्लास गाइस कल रख लें क्या? कल हाँ बोलो। सर क्या चीज सर? मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं कल आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा और उसमें से अपन डॉक्यूमेंट्स करके देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके, सो गाइज अटेंड योर सीएन क्लास, और कल एक क्लास रख लें क्या बताओ? सर हम लोग वैसे भी सर अहेड शेड्यूल चल रहे हैं सर, तो कोई जरूरत नहीं है सर अभी क्लास। और सेक्शंस में क्या सीन है पता है क्या आप लोगों को? इलिप्स शायद हो गया उन लोगों का। सर आई कोई गेस ना, हम लोग सर सबसे फास्ट मतलब सबसे आगे ही चल रहे हैं। फास्ट नहीं है अपन, सबसे फास्ट नहीं है। डी सेक्शन में इलिप्स कंप्लीट होकर शायद क्लिपिंग चल रही है नया मैम के सेक्शन में, जहाँ तक मुझे पता है। एक बार आप पता करना, ठीक है। चलो कोई ना, डोंट वरी, अगर नहीं लेना तो साफ मना कर दो, कोई एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है इसमें। नो प्रॉब्लम इन इट, अपन मंडे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।